پہلی بار کب محسوس ہوا کہ جہاز میں بیٹھتے ہوئے ڈر لگتا ہے؟ جب پہلی بار بیٹھا. سردار صاحب آپ سردار کہلواتے ہیں، اسی بہانے بتا دیجئے کون سے والے سردار ہیں؟ یار اس میں سچی بات ہے میں اس پہ مجھے اتنی دلچسپی نہیں ہوتی. ہیں تو سردار نا، بس نام کے ساتھ لکھا ہوا ہے. اب تو جو مزدار بات ہے کہ ہماری اگلی اولاد کو پتہ ہی نہیں. اسی لیے پوچھ رہا ہوں نا، ان کو پتہ چلے. نہیں ان کو کس لیے بتانا ہے؟ بال کی کھال تو آپ نے دیڑنی ہے. لوگ دو ٹرم استعمال کرتے ہیں آپ کے لیے. فاروق اسکندر صاحب بڑے درویش اور ملنگ آدمی ہیں، واقعی ایسے ہے؟ نہیں میں تو خود نہیں بتا سکتا. تو درویش اور ملنگ کو کیا لگے سیاست کے ساتھ؟ درویش کو اگر سگریٹ اچھے لگتے ہیں، اگر پیسے اچھے لگتے ہیں، پیسوں کو تو میں نے درویشوں کو جلاتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا. میں نے آپ کی ویڈیو دیکھی ابرار الحق کے گانے کے اوپر مست ہو کے ملنگ بن کے ڈانس کر رہے تھے. کریلوی خاندان وہ خاندان ہے جن کے پاس لوگ لائنوں میں لگے نا اپوائنٹمنٹ بنا کے ٹکٹ مانگنے کے اصول کے لیے آیا کرتے تھے. اسکندر صاحب چلے گئے، بے شک آج وہ رونقیں نہیں ہیں. آج آپ کو ٹکٹ چاہیے اور یہ ساری چیزیں جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ارتقائی سفر ہے. اس پہ ظاہر ہے اب تو میں تو یقین کرتا ہوں کہ کسی بھی ملکوں میں، تہذیب میں، سیاست میں عروج و زوال کا تو مجھے انکار اس سے ہے. کیا وجہ ہے اس دادے کا پوتا، اس باپ کا بیٹا فاروق اسکندر اپنے باپ دادا کی لیگسی کو چھوڑ کے نکیال کو کوٹلی آگے بسا؟ ویسے ایک تھوڑی سی میں آپ کو بھی ذرا دلچسپ بات بتاؤں کہ اس 47 میں دادے نے بھی الیکشن چھوڑا تھا. کوٹلی سے الیکشن لڑنا آپ کی ذاتی خواہش نہیں تھی؟ میری ذاتی نہیں تھی. کس کی خواہش تھی؟ یہ والد صاحب کی خواہش تھی. پوچھنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ نکیال کو کیوں چھوڑا؟ میں نے واپس نکیال سے کبھی الیکشن لڑنے کا سوچیں گے؟ دل کے کسی کونے میں آپ بھی یہ خواہش رکھتے ہیں کہ میں بھی کبھی وزارت عظمیٰ کے منصب پہ بیٹھوں؟ وزیر مال رہے ایک ایسی وزارت جو بدنام زمانہ ہے، مانتے ہیں آپ؟ نہیں. اس محکمے کے اندر اتنی کرپشن ہے، یہ اتنا مجبور اور لاچار کر دیتا ہے لوگوں کو. جی. یہ سیاستدانوں کو الیکشن جتوا دیتا ہے، ایک کی زمین دوسرے کے نام کروا دیتا ہے. نہیں الیکشن یہ کلچر ہے نا. الیکشن شاید نہیں جتوا سکتا کیونکہ تعداد میں کم ہوتے ہیں. ایک سابق وزیر مال سے پوچھ سکتا ہوں کہ ایک فرد نمبر جو جاری کرتا ہے محکمہ مال، اس کی سرکاری فیس کیا ہے؟ نہیں ابھی تو اس میں سرکاری فیس تو کم ہی ہے اب، لیکن اب یہ ہوا ہے لیکن سلو ہے. اور سب سے میں آپ سے ایک سوال کروں گا کہ کوئی گورنمنٹ مجھے بتا دے پاکستان میں جس کے بارے میں آپ یہ کہیں جی کہ یہ پہلے سے بہتر ہے. کوئی کہہ نہیں سکتا. کچھ بھی نہیں. وہ جس طرح نہیں وہ شادی دوسری کرتا بندہ تو یاد کرتا یا پہلے تو چنگیز. اگر جماعت نے نکیال سے ٹکٹ دے دیا تو جماعت نے دے دیا اگر تو ٹھیک، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، جماعت نے جو بھی فیصلہ کیا قبول کریں. جی جماعت کا جو فیصلہ ہے، لیکن اس میں ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھنا کہ وہ ہمارے اپنی ایک فیملی ہے، اس کے اندر بھی ہم اختلافات کر کے یا کسی کے کندھے پہ چڑھ کے پھر وہ مشکل ہے کہ آپ نے رشتے بھی بچانے اور سیاست بھی بچانے. سیاست اور رشتے دونوں، یہ حکمت ہے. بالکل دونوں اگر باہر رہے تو اچھی بات. کوٹلی سے آپ فاروق اسکندر، جی، ملک نواز صاحب، جی، انیف ملک صاحب، عبد الرحمان رائی صاحب، فاتح محمود اور زبیر اقبال کیانی، جی، یہ سب الیکشن لڑنا چاہتے ہیں. کیا ہوگا سٹی کوٹلی کے حلقے کا؟ اور پچھلی دفعہ دیکھ چکے ہیں لوگ. پچھلی دفعہ بھی شاید لوگوں کی خام خیالی تھی کہ میال کا شاید ہمارے لیے بنا ہے. فاروق اسکندر صاحب نکیال واپس جائیں تو بھتیجا آڑے آئے گا. جی. کوٹلی آئیں تو ملک نواز آڑے آئیں گے. جی. پلس فاتح محمود آڑے آئے گا. جی جی. آپ جائیں گے تو جائیں گے کدھر؟ نہیں میرا مسئلہ ہی کوئی نہیں. آپ اور سردار نعیم صاحب میں سے، چچا اور بھتیجا میں سے کون با اختیار ہے؟ فیصلے کون کرتا ہے خاندان میں؟ نہیں اس طرح کے ہے ہی نہیں ہے کوئی فیصلے، کوئی مطلب ہم نے کوئی پنچایت یا جرگا کر رہا ہے. بس ٹھیک ہے، مسئلہ مشورہ ہے. فتح محمد کریلوی صاحب نے جس مسلم کانفرنس کی نمائندگی یوم قرارداد پاکستان میں کی اور جس مسلم کانفرنس نے اپنے کے والد کو 2 بار وزیر اعظم اور 1 بار صدر بنایا،
उस मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को क्यों छोड़ा? किसने? आपने और आपके वालिद साहब ने? नहीं, सिकंदर साहब का तो सच्ची जो बात है कि एक फारूक हैदर साहब के बारे में एक गुस्सा था। आप नहीं चाहते थे कि अब्बा जी जो हैं वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में दोबारा वापस जाएं? नहीं, क्योंकि मैं अतीक खान साहब को सच्ची बात है कि बस हमने देखा हुआ है, बड़ा मुसनूई से आदमी, मुझे पसंद नहीं। सरदार अतीक पसंद नहीं? नहीं, मुसनूई से है, मैं बस वो जाली अक्सी होता है हर वक्त। तो वो अंदर बैठे हुए थे, भेजा, वो अंदर घर में गया, फिर अतीक खान साहब ने गोडों का हाथ लगाया सिकंदर साहब कि जब ये दोनों उठे, अतीक साहब और सिकंदर साहब, तो मैंने मतलब अपने हिसाब से एक बड़ा डायलॉग बोला, मैंने कहा इस फैसले में आपके साथ नहीं। अब्बा के सामने कह दिया? ठीक है। अतीक साहब को मुंह पे कहा? हाँ, अतीक साहब बोले, सिकंदर साहब भी मौजूद थे, तो आप हमारी ये मदद करें। फिर उन्होंने 9 करोड़ रुपया मांगा। किसने? अतीक साहब ने। किससे? इमरान खान से। 9 करोड़? इसने बताया। मुशर्रफ के डिक्टेटरशिप के दौर में भी रहे, जलजला भी आया, बहुत सारे उन्होंने अच्छे काम किए और एक टाइटल पाया उन्होंने कि बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे। आखिर वो कौन से काम है जिनके ऊपर बेटा फख्र करता है? मेरे ख्याल में नाम ही काफ़ी है, क्योंकि मेरा नाम उनके नाम के बगैर मुकम्मल नहीं। तो अब कोटली के पहले वो थे, वज़ीर थे, पहले वज़ीर आज़म थे, पहले सदर थे, और कोटली शहर में भी अगर देख ले डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है कि जहाँ वो कोई एक ईंट भी लगा के गए थे उससे आगे बढ़ नहीं सके। कितनी बार अब्बा के नाम से खुद से साइन करके लोगों को दिए? नहीं, मैंने कभी नहीं किया। हमने मार खानी थी उनसे। अब इस असेंबली में अगर सरदार क्यूम साहब और सिकंदर साहब बैठे हों तो क्या आप खुद तसव्वुर कर लेंगे वो भी क्या करें। कोटली से अगर मलिक नवाज साहब को टिकट मिला तो सर हम तस्लीम करेंगे उनके सामने, सपोर्ट करेंगे? आपके नज़दीक तो बड़ी ये लाइट सी बातें ले रहे हैं और वाकई हकीकत में भी ऐसे है। मैं जिंदगी को लाइट ही लेता हूँ, दिल पे नहीं लेते? नहीं, ये तो पिछला 2021 का इलेक्शन हुआ। मलिक नवाज साहब ने मेरे साथ ही बात करते हुए कहा कि मैंने मरहूम सिकंदर अयाद की वसीयत के ऊपर अमल करते हुए अपनी सियासी अमाजगाह को खाली किया, छोड़ा और फारूक सिकंदर को मौका दिया कि वो इलेक्शन लड़े। क्या ये उनका एहसान था आपके ऊपर? मुझे नहीं पता सिकंदर साहब और उनके दरमियान क्या बात हुई, लेकिन मेरे ख्याल में सिकंदर साहब का जाना मुस्लिम कॉन्फ्रेंस पे एहसान था, लेकिन उन्होंने इलेक्शन में हमारी सपोर्ट को नवाज साहब ने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में होते हुए आपकी सपोर्ट नहीं की? सपोर्ट नहीं की, कोई उन्होंने उस तरह की मीटिंग नहीं की, बस एक रस्म दुनिया निभाने वाली बात थी। तो अदरवाइज पोलिंग स्टेशन भी देख ले, हमारे वोट या अपने थे या कुछ और लोग थे, बाकी सपोर्ट नहीं है। मुझे दुख रहेगा इस बात का कि वो कम से कम सिकंदर साहब के साथ ऐसी, मेरे साथ करें कोई मसला नहीं, उनके साथ ऐसा करना नहीं चाहिए। जब उन्होंने ख्वाहिश का खुद इजहार किया उसके बावजूद, अगर ख्वाहिश का इजहार किया तो फिर आपको दयानतदारी का तकाजा यही था कि फिर आपको खुल के सपोर्ट भी करनी चाहिए थी। एक मीटिंग भी उन्होंने नहीं बुलाई कि लोगों को बुला के कहीं इसकी सपोर्ट करें इलेक्शन कैंपेन में। हाँ, आप अपना हक समझते हैं सिटी हल्का कोटली 1 से इलेक्शन लड़ना? नहीं, आपने तो आपकी अब्बा की खिदमात है इसलिए? नहीं, मैं कभी हक समझे नहीं। जो हक जिताने वाले हैं उन्होंने क्या किया है शहर के लिए। मैं बाकी समझता हूँ कि बाकी लोगों से शायद हक मेरा ज्यादा है कि जो सिकंदर साहब ने जहाँ पे कोई एक ईंट भी लगाई है तो बाकी उसको आगे बढ़ा नहीं सके। ठीक है, तो अगर यही कह लें कि उनकी खिदमात की एवज भी अगर लोग कहें यार उनका बेटा है। आपको और चौधरी यासीन को कोटली के लोग पता क्या कहते हैं? महाजिर सियासतदान है आप कोटली के अंदर। पता नहीं, पहली बार जब मेंबर असेंबली बने तो वजीर माल बने, मर्जी से वजारत ली? नहीं, बराद है कि सिकंदर साहब का अपना ही मजाज था। मैं आपको बता दूं, उन्होंने वजारत के लिए नहीं कहा फारूक हैदर साहब। आपको वजारत मियां नवाज शरीफ साहब के कहने के ऊपर फारूक हैदर साहब ने मतलब है कि उन्होंने कहा था कि इनको यार वजीर बनाना, वरना शायद फारूक हैदर साहब ना बनाते, मेरा अपना भी ख्याल, क्योंकि आखिरी दिनों में इनकी मुलाकात भी नहीं हो सकी। फारूक हैदर साहब जाहिर है सारी उम्र आगे पर इकट्ठे हुए हैं, तो वो उनकी फौत होने से पहले भी आप मिले ना
तो वो उस जिस दिन जनाजा था उस दिन भी आंसू बहा रहे थे। 2 भाई हैं आप, जी जी। क्या कसूर है तारक सिकंदर साहब का? सियासत को छोड़ के बाकी विरासत में तो उनको हिस्सा मिला ना, जी जी बिल्कुल। तो वो पीटीआई में क्यों है? इख्तलाफ क्या है? आप एक पेज पे क्यों नहीं आ सकते? नहीं, इख्तलाफ कोई जिसे कह लेना कोई असूली इख्तलाफ है या, क्योंकि देखे ना फैमिली के सारे बंदे एक साइड पे, सारे ही बंदे, बाकी लोग भी, एक अकेला बंदा दूसरी साइड पे। तो वहां भी उन्होंने बड़ी दिलचस्पी तजवीज थी कि पीपल्स पार्टी नहीं पीटीआई में गई ना? पीटीआई में जी। तो वहां भी जो तजवीज थी उनकी कि हमारी हुकूमत आई अगर पीटीआई की तो हम कैपिटल कराची शिफ्ट करेंगे। दादाजी जो थे मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से उनका तल्लक था, करारदाद पाकिस्तान जब मीनार पाकिस्तान पे पास हुई तो वो रियासती जमात मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की नुमाइंदगी कर रहे थे। क्या आप इन तमाम बातों से बाखबर हैं? मतलब बाखबर से मैं बाखबर तो इस लिहाज से हूँ कि सुनी हुई बातें, लेकिन मैं उस जमाने में था नहीं जी, मैं लाहौर में मौजूद नहीं था। आप अपने दादाजी से मिले? जी दादाजी से याद है। से याद है? जी जी। वो स्टेट काउंसिल के पहले 7 मेंबरान में से एक थे। जी जी। फिर वो 2 बार मेंबर असेंबली रहे। जी। फिर आपके वालिद जो थे वो सियासत में आए। जी। आखिर आपके दादाजी के कितने बेटे थे? उनके में 5 बेटे थे। पडानवी साहब 2 दफा नक्याल से इलेक्शन क्यों जीते और आप क्यों हारे? सर उसमें मैं तो 1 दफा हूँ। दूसरी दफा कौन आ रहा? नहीं साहब। ठीक। तो उसकी बड़ी वजह बरादरी का ज्यादा है, और कोई वजह नहीं। गुजर कबीला ज्यादा है? वो कबीला ज्यादा है और तो कोई वजह नहीं। उसमें हमारी तो कोई कमजोरी नहीं, वो कबीला ज्यादा है। कबीला ज्यादा है ना जी। तो इसी कबीले ने आपको सर आंखों के ऊपर बैठाए रखा ना? वो जाहिर है जब थे नहीं उनके अपना जावेद साहब नहीं थे तो था वो हमारे साथ ही कबीला था, तो उसमें और कोई खूबी नहीं। यही खूबी है कि वो तादाद में ज्यादा, ये खूबी है। आप मुझे बता लें, आप शायद इसको खूबी समझे ना समझे, लेकिन आप भी मेरे ख्याल में यही खूबी है और खूबी कोई नहीं। तो वो तादाद में ज्यादा होने की वजह से जीतते जाहिर है, या कबीला परस्ती की वजह से जीतते हैं? नहीं, तादाद में फिर ज्यादा ना साथ ये चीजें भी होती हैं ना। सिकंदर याद साहब फतेह मोहम्मद करीबी साहब के लाडले बेटे थे। जी जी। तो आप भी अपने वालिद के लाडले हो? हाँ मैं भी आप भी लाडले। मैं ज्यादा लाडला था। तो ये लाड तो सुना था बच्चों को खराब कर देता है, ये तो क्या से क्या बन गए? सिकंदर साहब? हाँ जी। तो असल में लाड ठीक भी कर देता है, खराब भी कर देता है, उसके दोनों उसके पहलू हैं। आपके वालिद साहब मरहूम सिकंदर याद साहब सख्त मजाज थे या सख्त मजाज? डरते थे आप उनसे? हाँ बहुत ज्यादा। कभी मार पड़ी? कई दफा। क्यों पड़ी? बस उस जमाने में तो आपको पता है कोई वजह, हमारे स्कूल में उस्ताद थे वो अजाज भट्ट साहब। कोई एक ऐसी वसीयत जो उन्होंने की हो और आप अमल भी कर रहे हो और उसका फायदा भी हुआ हो? ये लिखे जो खत तुझे, वो जो तेरी याद में। बस ये आपकी याद होगी, हमारी तो इस तरह की याद नहीं। दाल सब्जी और गोश्त में से क्या पसंद है? मतलब है इसमें मेरा तो होता है कि उस गोश्त को आप सब्जी और दाल के साथ ही पकाएं। जैसे आप खूबसूरत है ऐसी ये खूबसूरत जगह भी है मिल्टन कीन्स में। तो मैं, आपने हमें वक्त दिया, बहुत शुक्रिया। आपसे हमने बात की, बहुत अच्छा लगा। बड़ी थैंक यू सर। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।